Chief Minister Saab, is that, sir, what was the assistance provided by the Government of India to the state to fight COVID? What was the equipment given? And what was the financial help given by the Government of India to the state? This is very important, sir. Secondly, sir, Honorable Chief Minister Saab had spoken about Osmania Hospital. I want to reiterate my demand once again. We are against the demolition of Osmania Hospital. Osmania Hospital हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है. आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत. Many heritage structures को, कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो पुराने हैं उसको हम जिंदा रख सकते हैं. आज उस्मानिया गिरा तो कल क्या हाईकोर्ट को भी गिरा देंगे. तो आप बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए. एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है. मैं कहूंगा, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को मत गिराइए, उसको बनाइए, उसको जिंदा रखिए, उसकी अजमत को बहाल करिए, उसकी शान और शौकत को जो वीरान हो चुकी है उसको दोबारा बहाल करिए. और सर, I also like to know from the Honorable Chief Minister is that so important. Bharat Biotech. Bharat Biotech is in a second stage for the COVID vaccine. Sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab to please call for a meeting, and we should also have some share in the vaccine that would be made. If not, नहीं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलेगी, वो बोलेगी और सब चला जाएगा. यहां बन रहा है, यहां पे मेहनत हो रही है, यहां से निकल रहा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा. तो भारत बायोटेक वालों को बुलाकर बात करिए, उनसे मीटिंग करिए. दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क. वी शुड ऑल्सो appreciate them for the work and the research which they are doing. कि तेलंगाना को हेल्थ के नक्शे पर ले आए भारत बायोटेक. It's a very big achievement, sir. Sir, and fourthly, most important clarification, sir, the government has done whatever possible they could have done to fight the COVID, to treat the COVID patients. They have done. Honorable Minister Saab and Chief Minister Saab had also said, sir, but one reality is there. The people are losing the confidence in the government hospital. We need to build up the confidence of the poor people for going and getting treated at government hospitals. It is very important, sir. Why is it that a COVID patient has the fear and is scared to go to government hospital? We all need to work, build up that confidence and say that, okay, do not go to private hospital, go to government hospital. They are treating well, they are treating good. We need to build up this confidence. This is very important, sir. Sir, also, sir, please. A major clarification I want to ask, sir. I thank the Chief Minister, sir, for saying that he would consider in including COVID in Arogya Shri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much, sir. Sir, one request I want to make is that now, if any patient comes to the hospital where they are taking Arogya Shri, in the Arogya Shri package, COVID treatment is not included. Like if I go for a health problem to hospital, the doctors are scared to touch me. They do not want to touch. If they have to put a stunt or have any surgery, they do not want to touch the patient unless and until the report comes. Not the antigen, sir. We need to do the real RT-PCR test for this. So kindly include some amount in that. This is very important. If not, the doctors, the treating doctors and the treating nurses will get infected, sir. And one more clarification and request which I want to make to Honorable Chief Minister Saab is that, sir, in this, many patients have lost their life or they have treated and they have lost their savings by getting treatment in private hospitals. Any BPL person, CM Relief Fund से कुछ भी अमाउंट उनको मुकर्रर करके दे दीजिए तो गरीबों को बहुत फायदा होगा इससे. सर, आज माशी तौर से बहुत परेशान है गरीब. खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जों में है, सेविंग चले गई है. कुछ मदद हो जाती है उनकी अगर आप करेंगे, सर. सर, and also, sir, I just want to tell one thing, sir. In this COVID period, there was a crisis, and crisis was being getting created कि ऑक्सीजन की परेशानी, ऑक्सीजन क्या शॉर्टेज होगा हॉस्पिटल्स में. इफ खुदा ना खास्ता second wave comes,
we should tackle and see that this oxygen shortage should not happen, sir. It should not happen, sir. Sir, lastly, sir, I would like to just say that, sir, I'm not criticizing. फिर से बोलेंगे अकबर साहब तनकीद कर रहे, तनकीद नहीं कर रहा हूं साहब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कितना कैसा एटीट्यूड है। आप देखिए साहब, इसमें ये मिनिस्टर साहब जो स्टेटमेंट दिए उसमें पेज नंबर 2 में आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन बेड्स के बारे में कहे हैं कि 10,000 ऑक्सीजन बेड्स हैव बीन क्रिएटेड बोल के बोले साहब उसमें। और आप ये मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जो हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं सर, which we submit in the High Court and also to the press, the total oxygen beds are 5,861. नोट में 10,000 बोल रहे हैं आप, हाई कोर्ट को जो रोज दे रहे हम और इसमें 5,000, तो कौन सा सही है बताइए सर। आई एम श्योर इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द मिस्टेक ऑफ द ब्यूरोक्रेट सिटिंग देयर। दे एम्बैरस द गवर्नमेंट, दे डू नॉट टेक इट सीरियस। तो यह बात मैं कहना चाह रहा हूं साहब, आप काम करें और काम को बयान क्यों नहीं करते? काम जो करे हैं, जो खिदमत करे हैं, जो लड़े हैं इस दौर में, उसको बयान क्यों नहीं करते सर? एंड वन मोर थिंग सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, सर वी हैव मेनी म्युनिसिपल मार्केट्स लॉकडाउन के पीरियड में बंद था, लॉकडाउन के पीरियड का रेंट देने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। प्लीज एग्जेम्प्ट दैट रेंट सर। इन दिस लॉकडाउन पीरियड power tariff ka bill, because of the lockdown, the power people didn't come to collect the power bills. It is their mistake that they didn't come, but they made the consumers pay the penalty. So this is unfair, sir. पूरा स्लैब बना दिया साहब, उसको आगे बढ़ के चला गया। गरीब की नौकरी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। छोटे से घर में जहां पे 500, 800, 1000 का बिल आता था, उसको 4-4 हजार का बिल आया। बाज लोगों को 10-10, 20-20, 1-1 लाख का बिल आया। Kindly look into that. It is a very important, sir. It is very important, sir. सर मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये जितने टैक्सीज होते हैं, टैक्सीज को रोड टैक्स और दूसरे टैक्सेस देना पड़ता है। एवरी गवर्नमेंट हैज इन अदर स्टेट्स हैव एग्जेम्प्टेड देम। काइंडली सर, ये भी गरीब हैं, इनके टैक्सियां बंद थे, अभी भी लोग नहीं चला रहे टैक्सी। उबर होने दीजिए, ओला होने दीजिए, जितने भी टैक्सीज हैं, इनके जो भी टैक्सेस है उसको एग्जेम करेंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। और मैं फिर से आपसे यही कहूंगा सर कि आप भारत बायोटेक को बुलाइए, और मैं आप चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि मैंने तनकीद नहीं की, मेरी तनकीद हर वक्त बराए तामीर रहती है। और आप मेरे दोस्त थे, मैं आपका एहतराम व इज्जत करता हूं, आपको हम कदर की नजर से देखते हैं, और हमने हर वक्त, और आज मैं रिकॉर्ड में आके केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा सर, इस वास्ते कि आई वेंट एंड आई मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू हिम अ ईयर बैक कि ये वक्फ लैंड है सर, ये वक्फ लैंड का है। तो केटी रामाराव साहब रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल के वो वक्फ लैंड में इंटरवीन करके हमको 50 एकड़ दिलाए थे। और सर कोविड के पेशेंट्स को बरियल ग्राउंड्स में बरी करने नहीं दे रहे थे कोई भी। उस वक्त यही बरियल ग्राउंड जो केटीआर साहब दिए थे वो काम आया। हम उसमें 310 मुस्लिम मैयतों को दफनाए सर, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर। उसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बराबर लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपसे दूर होंगे। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा, पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग कहां बनाना चाहते बोलिए। हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, गलती हुई मुझे अफसोस है, बयान दिया, कहा बना लीजिए। फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए, एक मस्जिद इधर थी, एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी को यकीन हो या ना हो, हमको यकीन है कि आप बराबर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, हमारी आवाज पर आप सुनेंगे
और जो सही है उसको कबूल करते हुए उसका अमल करेंगे। मैं समझता हूं कि आप आज अगर अपने रिकॉर्ड में आकर बोले कि हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, नहीं, मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा था, इस वास्ते कि यह हुकूमत मेरी है, मैं आपके साथ हूं, आप पे तनकीद नहीं। हुकूमत की नाकामियों को और कामयाबियों को बताने में नाकाम जो हुए उसको उजागर कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब मेरे उठाए गए मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जो आरोग्यश्री और बीपीएल फैमिलीज के बारे में, टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में, म्युनिसिपल के रेंट के बारे में जो उठाया हूं मैं, उस पर आप हमदर्दाना गौर करेंगे। గురించి అడిగినారు అధ్యక్ష. ఇది తెలుగులో కరెక్ట్ చెప్పానంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి అసిస్టెంట్స్ శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు. उर्दू में बोलना है तो कोई खास असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आए और इस दरमियान में जो पैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ रिलीज हुए वो आम रिलीजेस है, वो है 256 करोड़ से, जस्ट 256 करोड़. एक 90 करोड़ अलग से दिए. अब उसका फिर उसमें गिनती करते हमारे बजट के साथ जोड़ते क्या जोड़ते वो अंत में पता चलेगा, और कुछ नहीं इसके सिवा. इसके अलावा कोई असिस्टेंस आया जो कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं था, ना मरकज के पास ना रियासत के पास. तो हम अपने कोशिश करें, हम एक 700-800 खरीद ली अपने कोशिशों पे, और मरकज का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दिए 647 वेंटिलेटर्स दिए, और उसको हमारे जो बजट होता है हिस्सा उसमें काट रहे. तो अलग से कुछ नहीं दिए, एक भी फ्री में नहीं, तो ये काटा जा रहा है. ये पता नहीं क्या होता है आखिर में, लास्ट में क्या करते नहीं मालूम. ये हकीकत है, बिकॉज दीज आर अकाउंट्स विच आर ऑडिटेबल. इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकते. दिस विल गो टू द काग आल्सो व्हाट असिस्टेंस हैज कम. एक्चुअली ना के बराबर सर आया कुछ नहीं है. बातें आए लेकिन पैसे तो नहीं मिले. हम कुछ रास्ते बताए थे, उसको भी माना नहीं गया. कुछ बढ़ाने की बात कहे, माना नहीं गया. कम से कम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करो बोले, वो भी माना नहीं गया. बिल्कुल नहीं, नहीं सुने, और नाक नाक खींच के जो है वसूल कर रहे. पूरे बैंक्स जितने भी रियासत के कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी नहीं माने. FRBM बढ़ाने की बात बोले हम, वो भी नहीं माने. बढ़ाए लेकिन कंडीशन लगा दिए, आप पावर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करो तभी दे देंगे, फलाना करो दे देंगे, ढिमका करो दे देंगे. उस पर भी पाबंदियां लगा दी. తెలుగులో చెప్ప రేపు తెలుగు చెప్తాం. ఏమి ఇవ్వాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఏమి ఇవ్వాలి, శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు తప్ప. ఇచ్చింది కేవలం 265 కోట్లు, అది కూడా NHRM మామూలుగా మా వాటాన అధ్యక్ష. ఇంకో 90 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు, దాన్ని కూడా మళ్ళీ లెక్కాడతారు. ఇప్పుడు వెంటిలేటర్స్ ఇచ్చిండ్రు, మళ్ళీ మన కోటలో కట్ చేస్తారు. మనం కొనుక్కున్నాం అధ్యక్ష 700 చిల్లర దాకా, వాళ్ళకి 600 చిల్లర సప్లై చేసిండ్రు. అన్ని రాష్ట్రాలకు చేసిండ్రు, తెలంగాణకి చేయలేదు. దానిలో మళ్ళా కట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీకు రావాల్సిన గ్రాంట్లో కట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంతకు మించి ఏమి సాయం చేయలేదు. ఇప్పటి వరకు ఏం జరగలేదు అధ్యక్ష. ఇంకా ఉల్టా వీడికి వచ్చినప్పుడల్లా ఎంతో కథలు చెప్పిపోతూ ఉంటారు సోకాల్ యూనియన్ మినిస్టర్స్. అది బంద్ చేస్తే మంచిదని, ఇది వాళ్ళ పరువే పోతుంది. ఎందుకంటే లెక్కలు ఓనాటికని మేము చెప్తాం కదా. दैट इज द असिस्टेंस विच हैज कम, नथिंग एल्स. जो भी किए जा रहे हैं हमारे बल पर, हमारे ताकत पर अब चल रहा है. भारत बायोटेक से हम जरूर बात करेंगे, हमसे मिलके भी गए वो लोग. डेफिनेटली होम स्टेट है तो वहाँ वैक्सीन अगर बनता है पहला प्रायोरिटी हमको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है. वी आर इंश्योरिंग दैट. आरोग्यश्री बट्टी विक्रमार्का साहब ने भी कहा है ये बात को, हमारे लोग भी कह रहे थे. मैं इसको ज़रूर एग्जामिन करता हूँ, तो वेरी सिंपैथेटिक दिस थिंग. लेकिन आप जो बात कहे वो अच्छी बात है कि गरीब से गरीब लोग कोई प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट लिए तो बेरेबल नहीं है उनको.
अगर कुछ आपके इल्म में ऐसा है, मेरे पास आए, हमारे एमएलए रोज देते रहते, आप भी भेजते रहते। सीएमआरएफ में पैसे है, लिबरली मैं देता हूं, आप जानते हैं। आप भेज दीजिए, कुछ अगर आपके नजरिए में ऐसा है तो 100% आई विल सैंक्शन दैट, बिकॉज इट इज इन माई डिस्क्रिप्शन। और ऑक्सीजन की कमी किसी भी कीमत पे नहीं आएंगे। वी हैव इंश्योर्ड। वो गलत प्रचार है बाहर जो भी हो रहा है, प्राइवेट हो सकता है, कुछ प्राइवेट लोगों का बदमाशी हो, मैं ऐसे समझता हूं, करती रॉन्ग बात है। हम पूरे तैयारियां करके हैं। और ये जो बात आपने कहा कि ऑक्सीजन बेड्स 100% मार्च से लेके अब तक 8,000 बेड हमने ऑक्सीजन बनाया। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था, शो पीस के जैसा था। व्हाट आई टोल्ड द डिपार्टमेंट इज, ये कहीं भी सिर्फ कोरोना ही नहीं, कल को कोई स्वाइन फ्लू हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, तो हम फायदे में ही रहेंगे। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाए तो अब बढ़ाते जाने के लिए मैंने कहा, हाईकोर्ट में जो दिया गया वो एक स्टेज वाला मामला था और दोनों को सेपरेट करके भी बता रहे। एक्सक्लूसिव कोरोना वार्ड्स के लिए ऑक्सीजन बेड कितने हैं, बाकी जो दूसरे ट्रीटमेंट है उसमें करने के लिए कितने हैं, दोनों को जोड़ के अगर कहा जाए आज 10,000 के ऊपर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आगे भी मैंने तो ये तक कहा कि पीएचसी में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करो, ताकि हम किसी भी कीमत पर कोई भी स्वाइन फ्लू या कोई एपिडेमिक आ जाता है तो फेस करने के लायक रहेंगे। और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे अगले बजट में या महसूस हुआ पूरे रियासतों के सरकारों को, मरकज के सरकार को, मरकज क्या करता मुझे नहीं मालूम, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रियासत में हेल्थ की बजट बढ़ाने की बहुत सख्त डिमांड है, बहुत जरूरत भी है। इस चीज पे नजर हम लोग डालेंगे, जरूर डालेंगे, जरूर बजट बढ़ाने की पूरी प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं, हैदराबाद में जो कभी नहीं थे, बस्ती दवाखाने हमने शुरू किए हैं। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। हैदराबाद में थे ही नहीं, एक भी नहीं था, कुछ अर्बन हेल्थ सेंटर्स थे, लेकिन अब उसको 200 दवाखाने ऑलरेडी बन चुके हैं और 150 मैंने सैंक्शन किया है। मेरे ख्याल से आगे 2-3 मंथ्स, राजेंद्र गाరు, 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स, 3 नेक्स्ट 3 महीने में पूरे 350 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में पब्लिक के लिए सेवा करते रहेंगे। वो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। हर डिवीजन को 150 डिवीजन है हमारा हैदराबाद में, उसमें हर डिवीजन को 2 मिलेंगे। और जहां गरीब ज्यादा है, एक 50 सीएम का कोटे में रखे हुए हैं, जहां ज्यादा लोग गरीब लोग हैं वहां वो 50 भी दे देंगे। कुल मिलाकर के 350 बस्ती दवाखाने शहर के अंदर काम करते रहेंगे। कोविड में भी काम आ रहा है, हर चीज में काम आ रहा है, ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे। कोविड जाने के बाद बस्ती दवाखाने काम करते रहेंगे। मैं समझता हूं मैं आपका पूरे जवाब दे दिया। और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स अ मैटर सब जुडिस। आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस। देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे जरूर। सिटी के पूरे एमएलए को बुला के मैं खुद बात करता हूं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। थैंक यू। हाँ, वो भी आपने बहुत अच्छा बात उठाया। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड ए रिप्रेजेंटेशन। वो जो भी है, 2-4 बात आपने कहा उसके साथ जोड़ के हमने काफी किया है, काफी चीजें किए हैं गरीबों के लिए। अगर ये भी लायक है, मुनासिब है तो जरूर करेंगे। कितने राशि होता मैं इसका आप एक चिट्ठी मुझे भेज दी, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को देके एग्जामिन करवाता हूं और मैं आपको इतला भी देता हूं कि क्या कर रहे हैं।